Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, I am Dr. Mohsen. Today we will discuss about the buoyancy and flotation in the course of fluid mechanics. In this chapter, the equilibrium of the floating and the submerged body will be considered. Thus, the chapter will include buoyancy, center of buoyancy, metacenter, metacentric height, uh, and the material also provided for the analytical method for determining the metacentric height, as it is beyond the scope of this course, so we will not discuss here the analytical method, condition of equilibrium of floating and submerged body, and also provided the data of the experimental method for metacentric height, as it is a part of the another course, that is the lab course of the fluid mechanics. So what is buoyancy? When a body is immersed in a fluid, an upward force is exerted but the fluid on the body by the fluid on the body. जैसे ही कोई बॉडी को हम इमर्स करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स जो एज अ रिएक्शन फोर्स है उसके ऊपर लगती है, जो कि वो फ्लूइड की तरफ से होती है उस बॉडी के ऊपर. दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड कॉल्ड द फोर्स ऑफ buoyancy or simple buoyancy. What is the center of buoyancy? It is defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to act. ये वो पॉइंट है जहाँ से फोर्स ऑफ buoyancy एक्ट करती है. और ये कौन एज द फोर्स ऑफ buoyancy क्या होती है? वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होती है, इक्वल होती है वेट के ऊपर किसके, जो कि डिस्प्लेस्ड होता है, जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया होता है वो फ्लूइड, उसकी जो अपवर्ड फोर्स है वो फोर्स ऑफ buoyancy है. तो सेंटर ऑफ द buoyancy क्या होगा? विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस हुआ है. उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिस्प्लेस फ्लूइड का, वो क्या होगा? सेंटर ऑफ buoyancy कहलाएगा. यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है ताकि स्टूडेंट सॉल्व करें. इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दे दिया गया है. व्हाट इज मेटासेंटर? It is defined as the point about which a body starts oscillating when the body is tilted by a small angle. The metacenter may also be defined as the point at which the line of action of forces of buoyancy will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement. अब हम देखते हैं, एक बॉडी है जो कि नॉर्मल एक्सिस में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया गया है जी के साथ, एंड पॉइंट जो फोर्स ऑफ buoyancy है, जो सेंटर ऑफ buoyancy है, उसको डिस्क्राइब किया गया पॉइंट बी के साथ. नॉर्मल एक्सिस में दोनों एक दूसरे को पास कर रही हैं. कंसीडर अ फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड एज शोन इन फिगर. Let the body is in equilibrium and G is the center of gravity and B is the center of buoyancy. For equilibrium, both the points lie on the normal axis, which is vertical. जैसे ही हम उनको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट जो है buoyancy, सेंटर ऑफ buoyancy का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जो कि उसकी न्यू लोकेशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया B1 के साथ. अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो उसका नॉर्मल एक्सिस है वो अगर हम देखें स्ट्रेच और पॉइंट B1 को ऊपर की तरफ मार्क करें, यहाँ पर ये पॉइंट B1 जाके उसे कट करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेटा सेंटर. ये जो पॉइंट M है जिसने एक्सिस नॉर्मल एक्सिस को कट किया, उसे हम क्या कहेंगे? मेटा सेंटर. That the body is given a small angular displacement in clockwise direction as shown in figure B, the center of buoyancy, which is center of gravity of the displaced liquid or center of gravity of the portion of the body submerged in the liquid, will now be shifted towards right from the normal axis, जो कि new location है उसकी B1. That it is at B1 as shown in figure. The line of action of the force of buoyancy in this new position will intersect the normal axis of the body at some point, जो कि उसे हमने क्या डिस्क्राइब किया? M से. This point M is called the metacenter. So what is metacentric height? The distance from the M G, यानी पॉइंट M से G के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? metacentric height. The distance between the metacenter of a floating body and the center of gravity of the body is called the metacentric height. यानी ये जो एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है मेटासेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, इसे हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं.
So here the material is presented for the analytical method. Now we will discuss condition of equilibrium of a floating and a submerged bodies. A submerged or a floating body is said to be stable if it comes back to its original position after a slight disturbance. जैसे हम थोड़े से उसे डिस्टर्बेंस दें, लेकिन बॉडी क्या है अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिटेन कर ले, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो वो होगा आपका हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम. द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड द सेंटर ऑफ बुयांसी B1 ऑफ अ बॉडी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी. जो मेन हमारे पॉइंट जी और पॉइंट बी है वो क्या है, डिस्क्राइब करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी. स्टेबिलिटी ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी में हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बैलून है विच इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन अ एयर, दैट द लोअर पोर्शन जो है उसका इज फिल्ड विद अ हैवी मटेरियल, contains a heavy material, so its center of gravity यानी point G is below than center of buoyancy. कंडीशन क्या है, हैवी मटेरियल फिल है इन द लोअर पोर्शन, तो उसकी वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर है, किससे, सेंटर ऑफ बुयांसी से. सो इन दिस केस जो वेट है वो रिएक्ट करेगा डाउनवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और फोर्स ऑफ बुयांसी जो है वो अपवर्ड मूव करेगी. Let the weight of the balloon as W. The weight W is acting through G vertically in the downward direction, while the buoyancy force Fb is acting vertically up through point B. For the equilibrium of balloon, जब equilibrium condition में होगा W is equal to Fb होगा. If the balloon is given an angular displacement in a clockwise direction as shown in figure, जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा angular displacement किया clockwise direction में, W and Fb constitute a couple. अब ये जो वेट है और फोर्स ऑफ बुयांसी है तो ये एक कपल प्रोड्यूस करेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, एंड ब्रिंग द बैलून इन द ओरिजिनल पोजीशन. दस द बैलून इन द पोजीशन एज शोन इन फिगर ए इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके कपल की वजह से वो क्या हो जाएगा, दोबारा वापस अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा. सो अब हम देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को आगे डिस्कस करते हैं. अभी हम यहाँ पे इनकी फिगर को देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है जी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अबव है एंड द सेंटर ऑफ बुयांसी जो है वो लोअर है. यहाँ पे क्या था जी, फर्स्ट केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज बिलो एंड सेंटर ऑफ बुयांसी वाज अबव, बट इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव देन द सेंटर ऑफ बुयांसी. इन दिस केस अगर हम एक थोड़ा सा स्लाइड मूवमेंट देंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, व्हेन W is equal to Fb and point B is above the G, the body is said to be in a stable equilibrium. अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, if W is equal to Fb but the center of buoyancy B is below the center of gravity, जैसे कि हमने फिगर में देखा है, the body is in unstable equilibrium as shown in figure. A slight displacement to this body in clockwise direction gives a couple due to W and Fb, but this couple will be in a क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब W इक्विलिब्रियम सस्टेन कार होगा जब Fb इज इक्वल टू W एंड B एंड G आर द सेम पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ जो है हमारा बुयांसी एक ही पॉइंट पे अगर फॉल कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. जैसे कि सर्कुलर बॉल है या कोई चीज़ है, उसमें क्या होगा, आप जैसे उसे घुमाएंगे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुयांसी क्या है, उसी जगह है, वो अपनी पोजीशन जो है ना सस्टेन उसी तरह किए रखेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी. स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मेटासेंटर, यानी अब हमारा पॉइंट ऑफ बुयांसी के साथ साथ क्या आ गया, मेटासेंटर का जो पॉइंट है वो भी इसमें कंसीडर हो जाएगा फ्लोटिंग बॉडी में. इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम की बात करते हैं, द पॉइंट M इज अबव द G. अब पॉइंट M को आप यानी डॉट लगा लें अंडरस्टैंड करने के लिए, M इज अबव द G. जैसे कि
यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, फिगर 2 में, m is above the g. The floating body will be in stable equilibrium as shown in figure. If a slight angular displacement given to the floating body in clockwise direction, the center of buoyancy shifts from B to B1 such that the vertical line B1 cuts M. At M, then the buoyancy force Fb through B1 and the weight through G constitute a couple acting in the anti-clockwise direction and thus bringing the floating body into the original position. लेकिन जब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव देन द सेंटर ऑफ बुयांसी, तो उस फॉर्म में क्या होगा, मेटा सेंटर जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा. द पॉइंट एम इज बिलो द जी. अब दूसरे के इसमें फ्लोटिंग बॉडी में हम डिस्कस कर रहे हैं मेटा सेंटर पॉइंट को. द मेटा सेंटर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बिलो द जी होगा. द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, जैसे ही डिस्टर्बिंग कपल होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और कपल ड्यू टू बुयांसी फोर्स एफ बी और डब्ल्यू बी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, ओवर टर्निंग ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी हो जाएगी. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अब इफ द पॉइंट एम इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. जब हम सबमर्ज बॉडी की बात करेंगे तो हम उसके ग्रेविटी उसका जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुयांसी की बात करेंगे. जब हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करेंगे तो हम हमारा जो कंसर्न होगा वो मेटा सेंटर पॉइंट की पोजीशन के ऊपर होगा. So here is experimental method, materials presented, and you will get these lectures from the lab course, inshallah. Thank you very much for this lecture. If you have any question, you can ask me below in the below link or through LMS system of the university.